Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear students, today we will discussing here very important and interesting point. The name of this point is this lesson is saturated and unsaturated. Saturated and unsaturated hydrocarbon. So my dear friend, first of all of you know what are unsaturated and what are saturated hydrocarbon. Basically I am already explained in our previous lecture what is the nomenclature of organic compound. These topics are already explained by us. And total topics are uploading in our YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri. So my dear friends, today only we have discussed what are a saturated hydrocarbon and what are a unsaturated hydrocarbon. Both types of hydrocarbons is a very important for you in the basic knowledge of the high school and full knowledge of the intermediate means class 11th and class 12th students. So my dear friends and my dear students, so let us going up to the new topic, what are a saturated hydrocarbon. First of all, we have discussing here what are a hydrocarbon. What is the hydrocarbon? Hydrocarbon means a types of compound, those are made by the only carbon and hydrogen. A types of a compound, those made by the only carbon and hydrogen is called hydrocarbon. Hydro means hydrogen and carbon means carbon. Hydrocarbon means the category, the majority of compound. The majority of compound is simply be equal to the hydrocarbons. But here only हाइड्रोकार्बन, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन कहूं तो आपको ही समझ में नहीं आएगा. ओनली हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यहां पर हम आगे चलते हैं. हाइड्रोकार्बन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स. वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो माय डियर फ्रेंड, what are a saturated hydrocarbon and what are unsaturated hydrocarbon? First of all, you know hydrocarbon means in these types of compound, those who are simply be made by the carbon and hydrogen is called hydrocarbon. Means only carbon and hydrogen. The hydrogen, carbon here as like means here a simple structure is the methane. Methane, what is the methane? Methane is the hydrocarbon. Hydrocarbon means these categories are these types of compound, those who are made by the only carbon and hydrogen is called hydrocarbon. My dear friends, after this hydrocarbon, we are discussing here what are a carbohydrate. My dear friend, carbohydrate, it means those categories of compound, those categories of elements, two or more than two elements are combined together in organic nature, just like to the carbohydrates. We are taking a few examples of the carbohydrate: glucose, fructose, dextrose, lactose. This one is the carbohydrate. Starch, lipid, fat, carbohydrate. Carbohydrate, fat, lipid, protein. These are different, not the same. These are different. But here, only we have discussing here today what is the meaning of a hydrocarbon and what is the function of hydrocarbon and how it can be made, या कैसे बनाया जाएगा, कैसे प्राप्त किया जाएगा, क्या होता है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे. तो आइए यहाँ पर एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑलरेडी been discussing here what is the hydrocarbon. It means those categories, those types of compound, those who are made by the carbon and hydrogen is called hydrocarbon. And hydrocarbon are divided into how many parts? Two parts. One is the saturated hydrocarbon, second is the unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon, my dear friends, saturated hydrocarbon, it means in those types of compound in between two carbon atoms, those types of
compounds, those who made by the carbon and hydrogen, in between two carbon molecules are simply attached with single bond, is called carbohydrate, is called saturated hydrocarbon, is called saturated hydrocarbon. And unsaturated hydrocarbon, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? Those types of unsaturated hydrocarbon, it means unsaturated, असंतृप्त. It means when the carbon and carbon molecule are bounded by double or triple bond. When the carbon and other carbon molecules are bounded by double and triple bond, is called unsaturated hydrocarbon. Here we are discussing the carbon atoms. यहाँ पर देखिए आप लिखा है carbon atoms is combined with the only hydrogen bonds. Only hydrogen bond. Is combined only hydrogen bond. It means hydrogen bond. And next one is carbon and carbon. Suppose that carbon and carbon. Here we are taking for example of this point. Carbon and carbon. My dear friend, all of you know. Just like we are taking example. Here carbon and carbon. We are taking example saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon it means संतृप्त कार्बन क्या होगी? इसका मतलब यह होता है कि जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बंध बना हुआ हो, एकल बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड लगा हुआ हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. जैसे आपने देखा यहाँ पर मैंने एग्जांपल शो किया है और अपने एग्जांपल में मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि इस एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि कार्बन और कार्बन के बीच आप देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है. हाइड्रोजन के बीच तो सिंगल बॉन्ड लगा ही है, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है. तो जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ हो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. फॉर एग्जांपल दैट इज एन प्रोपेन, प्रोपेन, एन प्रोपेन, प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन, एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन ऑक्टेन, एन नोनेन, एन डेकेन. नॉर्मल कंडीशन में एन मींस नॉर्मल. हियर n means normal, iso and neo. There are three categories of the compounds: normal, iso and neo. Normal it means normal का मतलब होता है सामान्य. सामान्य से अभिप्राय हमारा ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन द्वारा बनाई गई किसी चेन में, कार्बन के द्वारा बनाई गई किसी चेन में वहां पर कोई अन्य कंपाउंड ना जुड़ा हो, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई अन्य कंपाउंड ना जुड़ा हो, तो ऐसी कंडीशन को हम नॉर्मल बोलते हैं. क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे. यदि किसी फंक्शनल ग्रुप को हमने ऐड कर दिया, किसी सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप को हमने ऐड कर दिया, तब वहां पर उसे हम नॉर्मल नहीं बोलेंगे. इस बात को ध्यान में रखिएगा. आइसो, आइसो का मतलब यह होता है जब एक CH से दो CH3 जुड़े हुए हों, दो CH3 जुड़े हुए हों इस तरह से, यह कंडीशन आइसो बोली जाएगी. और आइसो का फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है और सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R डैश, सिंगल बॉन्ड H. आपने देखा CH से दो CH3 जुड़ा हुआ है और CH R डैश, तो ये हो गया और CH R डैश, यह हो गया आपका और CH R डैश. यहां पर हमने किया तो यहां पर देखिए CH से दो CH3 जुड़े हुए हैं, दो R जुड़ा हुआ है, दो एल्किल कंपाउंड जुड़े हुए हैं. ऐसी कंडीशन में ये इसको हम कहेंगे ये जो है ये आइसो है. अगर हम नियो की कंडीशन को देखते हैं तो सिंगल C से आप देखेंगे कि 3, यहां पर सिंगल C से, यहां पर आप देखिएगा सिंगल C से, आप देखिएगा कि सिंगल C से यहां पर ये देखिए CH से 3 एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है, CH से 3 और यहां पर CH2 से 2. तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्मल की कंडीशन में किसी भी कंपाउंड से कोई एलिमेंट नहीं जुड़ेगा. कार्बन मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन से अन्य कोई आप ऐसा कंपाउंड नहीं जोड़ेंगे जो इसको डिस्टर्ब कर रहा हो, या जो इसको इस तरह से अन्य कोई कंपाउंड आपने ऐड कर दिया OH ऑल
अल, मेथिल, एल्किल, ऐसे कंपाउंडों को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, तो इस तरह से जो है यहाँ पर डिफिकल्टीज पैदा हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफिकल्टीज आपके हार्मफुल है, मीन्स यहाँ कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में आपने देखा, मैंने भी आपको CH2 का नाम लिया। माय डियर फ्रेंड, CH2 से जब दो CH जुड़ेंगे, दो R जुड़ेंगे, तो यहाँ पर ये बोला जाएगा साइड जो है आइसो। और जब CH से 3 एल्किल जुड़ रहे हैं, 3 और अगर हम चेन में इसको लेते हैं हमारी फ्रेंड, चेन को देखा जाए तो चेन अगर लंबी है तो ऐसी कंडीशन में एक C से 3 जो है CH3 जुड़ते हैं और एक CH से 2 CH3 जुड़ते हैं। आइए देखते हैं उन चेनों को, तब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखिए एन प्रोपेन बोला गया, 1 2 3, यहाँ पर है 1 2 3 4 5। तो आपने देखा इसको एन प्रोपेन बोला गया, इसको एन पेंटेन बोला गया। इस तरह से एन प्रोपेन और एन पेंटेन की कंडीशन आती है। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब आप देखिए नॉर्मल, आइसो और नियो की कंडीशन को कैसे यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। नॉर्मल क्या होते हैं, आइसो क्या होते हैं, नियो क्या होते हैं। नॉर्मल में हमने इस तरह से कर दिया, नॉर्मल हो गया। लेकिन आइसो की कंडीशन देखिए आप लोग, CH ले लिया हमने और यहाँ पर 2 CH3 हमने जोड़ दिया, यहाँ पर 2 CH3 हमने जोड़ दिया इस तरह से, और यहाँ पर बॉन्ड को बढ़ाते चले गए, इस तरह से मैंने कर दिया। तो एक CH से 2 CH3, ये तो चेन को प्रोपोगेट करेगा, चेन की लंबाई को प्रोसीड करेगा। इसे देखिए आप, ये देखिए चेन की लंबाई को प्रोसीड कर रहा है, इसको तोड़कर और आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए चेन की लंबाई को प्रोसीड कर रहा है, इस तरह से चेन की लंबाई को अगर ये प्रोसीड कर रहा है, इस तरह से चेन की लंबाई को अगर ये प्रोसीड कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या स्थिति देखेंगे, आप यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर ये चेन की लंबाई को बढ़ा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब चेन की लंबाई को बढ़ाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कंडीशन ये नॉर्मल नहीं होगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चेन की लंबाई अब बढ़ती चली जा रही है। और हमने आपको बताया था जब चेन की लंबाई यहाँ पर प्रोपोगेट करती चली है, बढ़ती चली है, तो आपको सिर्फ एक CH से 2 CH3 को ही ऐड करना है, एक CH से 2 CH3 को ही ऐड करना है। अब आप देखिएगा हम एक C से 3 CH3 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर CH3 हमने कर दिया, यहाँ पर CH3 हमने कर दिया, और यहाँ पर ये CH2 हो गया, फिर ये CH3 हो गया। माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ पर आपने देखा कि एक C से 3 CH3 हो गए, यहाँ पर एक CH से 2 CH3 हो गए। इस CH3 को हम लिख सकते हैं CnH2n+1। यहाँ जो जहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, ये हो जाएगा C1H2 × 1+1, ये हो जाएगा CH3। माय डियर फ्रेंड, ये CH3 जो निकला, मेथिल जो निकला, या CH3 या मेथिल जो निकला है, या यहाँ पर ऐड हो गया। तो n की वैल्यू 1 कर देने पर हमने देखा कि यहाँ पर CH3 निकला है। 2 कर दिया जाए तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है C2H5 निकलेगा, 3 कर दिया जाए तो C3H7 निकलेगा। इस तरह से अलग अलग कंपाउंड यहाँ पर बनते रहेंगे, निकलते रहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि नॉर्मल, आइसो और नियो की भी कंडीशन होती है। आइए सबके सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ रहे हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल तो सही है, जो नॉर्मल के बाद आइसो और नियो की जो कंडीशन आती है, नॉर्मल के बाद आइसो और नियो की जो कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में आप बोलिएगा कि यहाँ पर नॉर्मल पर आइसो और नियो की जो कंडीशन आ रही है, इसको कहा जाएगा कि ये जो है इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होना है। अब आइसो और नियो अगर बन रहा है, तो वहां पर हम ये कहेंगे, अगर आइसो और नियो बन रहा है तो हम ये कहेंगे कि आइसो और नियो में, जैसे आइसोप्रोपिलीन, नियोब्यूटिलीन, नियोहेक्सिलीन, नियोहेक्साइन, नियोहेक्सिन, आइसोहेक्सिन, आइसोहेक्साइन, इस तरह से बोल सकते हैं। तो नॉर्मल नहीं बोल सकते उसको। नॉर्मल की कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया, नॉर्मल हम तभी बोल सकते हैं जबकि उस चेन में कोई अदर एलिमेंट्स ना ऐड हुआ हो, उसके चेन में कोई अदर एलिमेंट्स ना ऐड हुआ हो, इसलिए उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा इन चेन को हमने नॉर्मल बोला है। तो नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि इसमें आपको कोई और कंपाउंड को नहीं जोड़ना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये नॉर्मल की चेन हमने अभी आपको समझाया। अब हम बता रहे हैं आपको नॉर्मल की कंडीशन के बाद, हाइड्रोकार्बन की कंडीशन के बाद, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर नॉमेनक्लेचर तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका आप नाम क्या करेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर इसको अपलोड कर रखा है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर आज हमको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड
में एलिफैटिक में क्या बनते हैं और एरोमेटिक में क्या बनते हैं। सबसे पहले हम एलिफैटिक की बात करें, इसके बाद फिर एरोमेटिक की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर सैचुरेटेड मैंने बताया, सैचुरेटेड में आपने देखा कि यहाँ पर मैंने लिखा CH3 CH2 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 CH3, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 यन हेक्सेन। क्या हो गया? यन हेक्सेन हो गया। अब यहाँ पर इसको नॉर्मल की कंडीशन में यन हमने लिख दिया, लेकिन अगर इसी को हमको आइसोहेक्सेन में बनाना है, नियोहेक्सेन में, देखो कैसे हम बना रहे हैं। इसी को हमने लिखा CH3 अब यहाँ पर हो गया CH2 CH3। अब यहाँ पर देखिएगा ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इसको लिखेंगे आइसोहेक्सेन। क्या लिखेंगे? आइसोहेक्सेन। माय डियर फ्रेंड, नॉर्मल इसलिए मैं नहीं लिख सकता कि नॉर्मल लिखने से इसके ऊपर, चेन के ऊपर हम और कोई कंपाउंड नहीं जोड़ सकते। अगर मैंने कोई कंपाउंड जोड़ा है हम उसे नॉर्मल नहीं लिख सकते। तो इस बात के लिए आगे देखेंगे आप। नॉर्मल की कंडीशन ये हो गई। अब आइसो में आपने देखा, आइसो कंडीशन के लिए मैंने बताया जब एक CH से 2 CH3 जुड़ेंगे तो आइसो हो जाएगा। चेन में मैंने ना तो इन लगाया है। अब आइसो में N भी बनता है, इन भी बनता है, आइन बनता है। आइसोपेंटाइन, आइसोपेंटीन, आइसोहेक्साइन, आइसोहेक्सिन। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ पर हमको ऐसे कर दिया हमने, यहाँ पर हमने इसको ऐसे का डबल बॉन्ड लगा दिया और ये CH2 कर दिया। तो यहाँ पर आइसोहेक्सिन ना होकर के आइसोहेक्सेन ना होकर के आइसोहेक्सिन हो गया। HEXENE आइसोहेक्सिन हो गया। और अगर इसको हमको आइसोहेक्साइन बनाना है तो आइसोहेक्साइन कंडीशन के लिए यहाँ पर हमने क्या किया कि इस पूरे हाइड्रोजन को हटा कर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसोहेक्साइन हो गया और यहाँ पर ये नाम निकल जाएगा YNE। इसका मतलब ये हो गया, आपने देखा पहले ही आपको बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ होता है तो इसको N बोला जाएगा, डबल बॉन्ड से लगा हुआ है तो इन बोला जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ है तो आइन बोला जाएगा। N के लिए मैंने कहा ANE, इन के लिए मैंने कहा ENE, आइन के लिए मैंने कहा YNE। इस तरह से ANE, N, ENE, इन, YNE, आइन। आपने देखा कि N भी बनता है, इन भी बनता है, आइन भी बनता है। तो इस तरह से आपने कंपाउंडों का फॉर्मेशन तो कर लिया, कंपाउंडों को आपने तो आसानी पूर्वक बना लिया और नाम आप भी निकाल लिए। अगर कोई कंपाउंड नहीं जुड़ा था तो आपने कहा इसको यन हेक्सेन। क्या कहा आपने? यन हेक्सेन कहा आपने। और कोई कंपाउंड यहाँ पर जुड़ गया और फिर आपने नाम लिया। जैसे यहाँ पर देखिएगा और डबल बॉन्ड था तो हमने कहा था इसको डबल बॉन्ड था। इस तरह से हमने कहा कि ये हो गया आइसोहेक्सिन, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ये हो गया आइसो के बजाय हो गया ये नियो। क्या हो गया? नियो हो गया। अब इस तरह से ये नियो हो जाएगा। अब ये नियो हेक्साइन हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, इन आइन भी बन सकता है आइसो और नियो में, लेकिन नॉर्मल में ये नहीं बनेंगे। अगर आपने इन और आइन लगा दिया तो नॉर्मल की कंडीशन में ये नहीं बनने हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपने देखा मैंने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के विषय में डिस्कस कर दिया। अब आइए अनसैचुरेटेड के विषय में देखते हैं। अनसैचुरेटेड को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ओपन चेन में और ज्यादा हायर कंपाउंडों को लेकर के। अभी मैंने डबल और ट्रिपल बॉन्ड लेकर के सिर्फ नॉर्मल आइसोनियो की कंडीशन को समझाया। अब अगर हमको आपको क्लियर समझना है कि एक चेन में कैसे इनको प्रोपेगेट किया जाएगा तो आइए उसके विषय में डिस्कस करते हैं। अब हम सबसे पहले आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखिए, अगर हमको बनाना है unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon means in this categories of hydrocarbons their carbon elements also be connected by double and triple bonded। ऐसे यौगिक, कार्बन के ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध अथवा त्रिबंध बना हुआ हो। कार्बन द्वारा बनाए गए ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के द्वारा द्विबंध और त्रिबंध बना हुआ हो। तो आइए देखते हैं द्विबंध और त्रिबंध कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मैंने कर दिया। यहाँ पर देखिएगा कि ये डबल बॉन्ड लग गया। अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हो गया। तो असंतृप्त का पहला कंपाउंड देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एज लाइक, इस तरह से आप देखिए एज लाइक ये हो गया H H H H। इस तरह से आपने देखा
यहां पर मैंने लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया एथिलीन। क्या हो गया? एथिलीन। तो यहाँ पर एथिलीन को मैंने बनाया। और फिर देखिएगा अगर हम एसिटिलीन को बना दिया, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये बन गया एसिटिलीन। ये सब क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच आपने देखा कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना। जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, ऐसे कंपाउंडों को जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ऐसे कंपाउंडों को हमने कहा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको नाम दिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहां पर बन गया। तो हाइड्रोकार्बनों को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। तो इस तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गए। अब आइए मैं और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि अनसैचुरेटेड, मैंने आपको बताया था अभी आपको कि अनसैचुरेटेड की कंडीशन में, असंतृप्त की कंडीशन में द्विबंध और त्रिबंध दोनों बनते हैं। अब आइए देखते हैं जहां पर द्विबंध और त्रिबंध दोनों बन रहे हैं, कैसे किस तरह से इनकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा, इनके नए कंपाउंड को हम किस तरह से बनाएंगे। आइए देखा जाए। जैसे यहां पर मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड ले रहा हूं, एरोमेटिक। माय डियर फ्रेंड, ये कंपाउंड का नाम है बेंजीन, C6H6 बेंजीन। अब यहां पर देखिए जितना कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन है। इसको हम ओपन चेन भी बनाएंगे, क्लोज चेन में भी बनाएंगे। आप देखिएगा जिसको अनसैचुरेटेड कैसे होता है। बेंजीन जो है सबसे हाईली अनसैचुरेटेड है। बेंजीन क्या है? सबसे हाईली अनसैचुरेटेड। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर आर 3 टाइम्स ऑफ डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स आर प्रेजेंट डबल बॉन्ड इन बेंजीन रिंग्स। जस्ट लाइक फॉर गिवन एग्जांपल एज लाइक, इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर तीन बार जो है 3 टाइम्स 3 बार इसमें जो है ये डबल बॉन्ड लगा। अब ये अगर 3 टाइम्स इसमें डबल बॉन्ड लगा तो यहां पर ये हो जाएगा इस तरह से, ऐसे भी बना दिया आपने, नो प्रॉब्लम। या इसको ऐसे बॉन्ड को ऐसे चेंज कर दिया आपने, इस साइड से बनाया आपने, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर आपने जो है बॉन्ड के स्ट्रक्चर को देखा और इसकी प्रॉपर्टीज को आपने देखा। स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज में कोई जो है डिफरेंस आया है? अगर क्या डिफरेंस है तो आपने देखा यहां पर कि यहां पर आपने डबल बॉन्ड लगाया है, 3 टाइम्स आपने डबल बॉन्ड लगाया, यहां पर 3 टाइम्स आप डबल बॉन्ड लगाया। लेकिन बॉन्ड की कंडीशन आप क्या देख रहे हो? बॉन्ड की कंडीशन आप देख रहे हो इस साइड में बॉन्ड यहां पर इस साइड से लगा हुआ है, A B C D E F। यहां पर देखिएगा A, यहां पर देखिएगा B C D E F। यहां पर देखिए बॉन्ड है A से B की साइड में, फिर यहां पर बॉन्ड A से F की साइड में है, जस्ट अपोजिट है। अगर इसमें बॉन्ड की साइड को देखा जाए तो बॉन्ड की साइड इस तरह से रोटेट कर रही है और यहां पर बॉन्ड की साइड इस तरह से रोटेट कर रही है। माने ये जो है अगर ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि दोनों बेंजीन है। तो बेंजीन में आपने क्या देखा? बेंजीन में आपने देखा कि हाईली अनसैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 बार जो है डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। अब आइए देखते हैं मैं इसी बेंजीन को C6H6 को ओपन चेन में कैसे बना रहा हूं। अगर ओपन चेन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ओपन चेन के स्ट्रक्चर को देखिए आप लोग। यहां पर मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप काउंट कर देखिएगा 1 2 3 4 5 6। कार्बन हो गया 6, हाइड्रोजन 3 1 4 5 2 1 3 1 4 2 6, हाइड्रोजन 6। इस तरह से आपने देखा कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 बन गया। ये ओपन चेन में बना। और इसका पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल आप देखिए। यहां पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड। यहां पर आप देखिएगा यहां पर हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब यहां पर आप देखा CH3 हमने कर दिया, CH3 हमने कर दिया। अब यहां पर ये सिंगल बॉन्ड लगाया हमने CH3। और यहां पर जो है, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर हमने लिखा है कि एक साइड में हमने लिखा CH3
तो अगली साइड में भी अगर CH3 को हम लिखते हैं तो यहाँ पर 6 कार्बन मॉलिक्यूल एक साथ लिए जाएंगे। 6 कार्बन मॉलिक्यूल का बेंजीन में बेंजीन है, और बेंजीन में आपने देखा कि यहाँ पर जो है ये कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6, दोनों 6 मॉलिक्यूल में है। और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर पहले 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6 हो गया, और देखिए कार्बन 6 यहाँ पर हो गया। और आपको यहाँ पर बनाना क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर बनाना, द्वितीय संरचना बनानी है। अब द्वितीय संरचना को हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा CH, अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया। अब ये देखिएगा 2 1 3 हो गया, CH2 कर दिया हमने, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C कर दिया हमने। अब हो गया मैंने बॉन्ड पूरा, बॉन्ड काउंट करते चलिए, 2 1 3 1 4 पूरा हो गया। अब यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगाया हमने। और फिर इस तरह से हमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद फिर यहाँ पर हम लेके चले आए, CH कर दिया हमने, फिर ट्रिपल बॉन्ड लगाया, सॉरी यहाँ पर फिर हमने डबल बॉन्ड लगाया यहाँ पर। अब ये हो गया डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से आपने देखा 1 2 3 4 बॉन्ड का स्ट्रक्चर ऐसे सिंपल ही जैसे हमने बनाया है, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2। अब इसी को आप देखिए, अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर में लेके चलते हैं, हम पहले CH3 लेते, CH3 सिंगल बॉन्ड हमने कर दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया CH3। और यहाँ पर अगर हमने CH3 लिख दिया तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे CH। अब हमको क्या करना क्या है, C6H6 ही बनाना है। अब C6H6 बनाना है तो यहाँ पर हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, देखिएगा 314 हो गया। फिर यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आप बना रहे हो, 1 2 हो गया है। अब आपको डबल बॉन्ड यूज कर दीजिए और यहाँ पर बना दीजिए आप लोग, सिंगल बॉन्ड यूज करिए और यहाँ पर बनाइए आप लोग जो है इसको, क्योंकि यहाँ पर बन गया है 1, ये बन गया है कि CH3 C डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। फिर हम इसको ओपन कर रहे हैं, और ओपन करने के बाद आप देखिएगा कि इसमें हम बॉन्ड जो बनाने चल रहे हैं वहां पर आप देखते रहिएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया CH3 और इसको बॉन्ड को बैलेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसको बॉन्ड को बैलेंस करेंगे तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, 314 इसका हो गया, और अभी 1 2 इसका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड से बांध दिया है इसको, और ट्रिपल बॉन्ड से बांध देने के बाद अब यहाँ पर हाइड्रोजनों को 1 2 3 4 5 ही हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजनों के नंबर को हम कम करेंगे और यहाँ पर भी कम करेंगे। यहाँ पर हमने कम कर दिया तो यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर पहले जैसा कंपाउंड बन जाएगा। और इस तरह से आपने देखा कि नंबर ऑफ कंपाउंड बनते चले जा रहे हैं। और एक दूसरा एग्जांपल आप देखिए, मैं दूसरा एग्जांपल जो शो करने चल रहा हूँ उस एग्जांपल को भी आप देखिए किस तरह से उस एग्जांपल को शो किया जाएगा। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको एक ही संरचना के विषय में डिस्कस करके बताया आपको। अब अगर दूसरी संरचना के विषय में हम डिस्कस करते हैं तो आप देखिएगा H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर देखिएगा सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर CH हमने कर दिया है 2 2 4 1 5, यहाँ पर हो गया H। इस तरह से आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ये देखिएगा संरचना आप लोग ध्यान से देखिएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर हर कार्बन की आप ध्यान दे रहे हैं, हर कार्बन की आपको 4 वैलेंसीज कंप्लीट मिल रही हैं। तो कार्बन की अगर 4 वैलेंसी कंप्लीट है तो यहाँ पर हमने क्यों इसको ओपन चेन में न लिख करके रिंग में क्यों लिखा? अभी एक मेजर क्वेश्चन है कि हमने इसको ओपन चेन में न लिख करके रिंग में क्यों लिखा, जबकि बेंजीन की जो संरचना है वह रिंग में दी गई है। और आपने देखा हमने 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं। इस तरह से जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, यहाँ 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं और दोनों ओपन चेन है। और ये बेंजीन की जो संरचना अगली हम बनाने चल रहे हैं, जरा उस संरचना को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली संरचना बना रहे हैं।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस केस में एक बार ट्रिपल बॉन्ड आया है, 2 बार डबल बॉन्ड आया है। इस केस में 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आया है और डबल बॉन्ड एक बार भी नहीं आया, 2 बार से ट्रिपल बॉन्ड आए हैं। अब इसी को आप देखिएगा हम कैसे बना रहे हैं, तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा, दोनों बेंजीन है और आप देखिएगा कि हम कैसे इनको लेके चल रहे हैं रिंग में कैसे बना रहे हैं। अब आप देखिए रिंग में जो मैं बनाने चल रहा हूं, इसको यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर ये कार्बन हो गया, यहाँ पर ये 3 कार्बन हो गए, ये चौथा कार्बन हो गया, ये 5वां कार्बन हो गया और ये 6वां कार्बन हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया हमने, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया, 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 यहाँ पर ये हो गया क्लियर। यहाँ पर देखिएगा एक एच हमने लगा दिया, 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 एक एच यहाँ पर भी लगा दिया। अब आप क्या देख रहे हो, अब आप यह देख रहे हो इस स्ट्रक्चर में कोई भी कार्बन आप ऐसा उठाइए जिसमें 4 बॉन्ड हो, किसी कार्बन का 4 बॉन्ड नहीं है। अब आप 4 बॉन्ड कैसे कंप्लीट करोगे, यहीं से आप लगा दीजिए, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब ये देखिए इस कार्बन के साथ दोनों कार्बनों के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इधर भी आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ भी आप देखेंगे कि इन दोनों के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, यहाँ भी आप लगा दीजिए, इसको भी आप देखेंगे 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो कितनी बार लगे, यहाँ पर 3 टाइम्स लगा है, 3 बार जो है ये द्विबंध लगा हुआ है, द्विबंध। डबल बॉन्ड जो है ये कितनी बार लगा हुआ है, 3 बार लगा हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, संतृप्तता और असंतृप्तता की बात करते हैं, तो कौन सा यौगिक ज्यादा संतृप्त होगा और कौन सा ज्यादा असंतृप्त। तो ज्यादा संतृप्त वही यौगिक होगा जो है जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा बार आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड इस बेंजीन की स्ट्रक्चर में 3 बार आ रहा है, और अगर 3 बार आ रहा है तो 3 बार आने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड 3 बार आ रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया, हाईली अनसैचुरेटेड हो गया। तो मैंने अभी डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन करके आपको बताया कि जितनी बार ये डबल बॉन्ड बढ़ता जाएगा उतना ही हाईली अनसैचुरेटेड होता चला जाएगा। तो 3 बार यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया, इसका मतलब हो गया कि ओपन चेन के स्ट्रक्चर में, क्लोज चेन में ज्यादा डबल बॉन्ड लग रहे हैं, तो ओपन चेन हाईली अनसैचुरेटेड है। और ओपन चेन में आपने देखा बॉन्ड तो लगा दिया गया, लेकिन बेंजीन जो रिएक्शन करते हैं, जैसे बेंजीन में बीटीओ, बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनाता है ओजोन के साथ रिएक्शन करके, बीटीओ बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनाता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। इस तरह से आपने देखा कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना रहा है, बेंजीन ट्राइओजोनाइड बना रहा है, माने क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ भी, माने ओजोन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। ऐसे रिएक्शन ओपन चेन नहीं कर सकते, इसीलिए बेंजीन का जो रिएक्शन ओपन चेन कर सकता हो, जो रिएक्शन क्लोज चेन में रिएक्शन करके उसके हाईली अनसैचुरेटेड होने के प्रोसेस को क्लियर कर सकता हो, स्पष्ट बता सकता हो, स्पष्ट दिखा सकता हो, उसी को हम बोलेंगे कि हाईली अनसैचुरेटेड है। सो माय डियर फ्रेंड, अब आइए आगे बढ़ते हैं। हम आपको कुछ विशेष पॉइंटों पर डिस्कस करके आपको बताना चाहेंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि अब आप देखिएगा कुछ हम क्रियात्मक समूह यहाँ पर बताएंगे आपको। जैसे क्रियात्मक समूह क्या है, जैसे सपोज दैट आपने पढ़ लिया यहाँ पर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, NH2 हमने लिख दिया, अमीनो, इसको लिखेंगे क्लोरो, ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया फ्लोरो, आयोडो, सॉरी इसको हम लिखेंगे आयोडो, ये फ्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया, यहाँ पर अमीनो हो गया। तो आपने क्या देखा, क्लोरो, ब्रोमो और फ्लोरो, आयोडो, अमीनो, ये बन गए। और भी देखिए कंपाउंड इसके, जैसे और भी देखिए देखते चलिएगा आप लोग। अमीनो तक मैंने जोड़ दिया है, इस तरह देखिए सिंगल बॉन्ड लगाकर वो लगाया, ये हो गया ऑक्सी या ईथर, ऑक्सी या और ईथर। और इस तरह हमने सी डबल बॉन्ड कर दिया, इसको हमने लिखा कीटोन। क्या लिखा, कीटोन लिखा इसको हमने। अब अगला कंपाउंड देखिएगा, अब इसका अगला जो कंपाउंड हम बनाने चल रहे हैं, अब अगला कंपाउंड देखिएगा, इसका जो अगला कंपाउंड हम बनाने चल रहे हैं, ये हो गया देखिएगा सिंगल बॉन्ड सी
यहाँ पर CHO बन गया अल या एल्डिहाइड, अल और एल्डिहाइड, इसको अल और एल्डिहाइड बोलेंगे, एल्डिहाइड बोला जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से देखिए C डबल बॉन्ड OH, ओइक और या कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, ओइक या कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओइक या कार्बोक्सिलिक बोलेंगे। तो इस तरह से आपने देखा ओइक या कार्बोक्सिलिक हमने कह दिया इसको। और भी देखते चलिएगा, और भी कंपाउंडों को हम बना रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। इतने समूह होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और फंक्शनल ग्रुप की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और सब्स्टिट्यूशनल क्या होते हैं। माय डियर फ्रेंड, जरा इनको देख लीजिए ध्यान से। ये चेन को मैंने लिख दिया CH3 CH2 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 CHO। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया CHO मैंने लगाया 1 2 3 4 5 6। इसको बोला जाएगा हेक्सेनल, क्या बोलेंगे, हेक्सेनल यानी AL, हेक्सेनल बोला गया। एल्डिहाइड लगा दिया हमने। और फिर देखिएगा, और यहाँ पर अगर हमने एल्डिहाइड लगा दिया तो फंक्शनल ग्रुप इसका हो गया हेक्सेनल। और किसी कार्बन को हटाकर, किसी हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर हमने किसी कार्बन पर क्लोरीन लगा दिया, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस ग्रुप को बोला जाएगा फंक्शनल। अब ये फंक्शनल हो गया। फंक्शनल का मतलब होता है जो क्रियात्मक समूह हो। फंक्शनल का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जो क्रियात्मक क्रिएटिविटी को, उसकी क्रियात्मकता को प्रदर्शित करे। यहाँ पर ये CHO फंक्शनल हो गया, लेकिन क्लोरो जो है आपने हाइड्रोजन को हटा करके ऐड किया है, यह सब्स्टिट्यूशनल हो गया, सब्स्टिट्यूशनल हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशनल क्यों कहा गया। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशनल इसलिए कहा गया कि इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को हटा करके फिर वहां पर अपने को ऐड किया है। इसलिए यह क्या हो गया, यह हो गया, आसानी पूर्वक देखेंगे, सब्स्टिट्यूशनल हो गया, प्रतिस्थापी हो गया, क्योंकि एक को हटा करके स्वयं को जोड़ रहा है। ये सब्स्टिट्यूशनल में आया, लेकिन ये फंक्शनल में आ गया। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शनल उन्हें कहा जाएगा जिनके आधार पर पूरी एक सीरीज चलती हो, पूरी एक सीरीज चलती हो। जैसे अल हमने ले लिया, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनेनल, डेकेनल। ये अल की एक सीरीज चल रही है, या अल की एक सीरीज चल रही है। तो हमने कहा कि अल वाली सीरीज है। अब देखिए अल की, अल या एल्डिहाइड, अल या एल्डिहाइड, तो इसको हमने फंक्शनल कहा। अब अगर इसी के स्थान पर हमने इस तरह से कर दिया, COOH कर दिया, देखिए देखते रहिए आप लोग ध्यान से, COOH कर दिया हमने, COOH कर दिया। अब ये क्या हो गया, ओइक हो गया, ओइक हो गया, ओइक हो गया। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक बोला जाएगा। अब ये कार्बोक्सिलिक हो गया, जिसको हम ओइक का नाम दिए। तो हमारे फ्रेंड यहाँ पर आपने देखा कि यही ग्रुप है जिनको हम प्लेस बदल दे रहे हैं, माने टर्मिनल पर। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल पर मिडिल में जुड़ने वाले कंपाउंडों में आपने देखा कि ओइक होता है, ओन होता है और एस्टर होते हैं। ओन और एस्टर को हम मिडिल में ऐड करते हैं। जैसे देखिएगा, ओन और एस्टर को मिडिल में ऐड करके कंपाउंड बना रहे हैं हम। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो संरचना बनाया है। अब आप देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर ये मिडिल में लगा, लेकिन क्रियात्मक है, ये फंक्शनल है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप के रूप में लग रहा है, फंक्शनल के रूप में लग रहा है। इसका मतलब हो गया CO ये फंक्शनल है। क्लियर हो गया। अब आप देखिएगा COOH मैंने कहा, उसको भी लगा दिखा दिया। अब Cl लगा रहे हैं, इसको साइनो बोलना है, साइनो बोलना है। अब यही MC कर दिया हमने, आइसो साइनो हो गया, आइसो साइनो हो गया। तो आइसो साइनो के लिए हमने MC लगाया और साइनो के लिए हमने Cl लगाया। तो आइसो साइनो के लिए हमने MC जो लगाया। अब आप इनसे रिलेटेड कोई कंपाउंड देखिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा, फंक्शनल ग्रुप उन्हें कहा जाएगा
जिनके लगाने से एक पूरी सीरीज तैयार हो जाती है, पूरी श्रेणी बन जाती है। और सब्स्टिट्यूशनल उन्हें कहा जाता है जिनमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई अन्य कंपाउंडों को जोड़ा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा मैंने फंक्शनल क्या होते हैं और सब्स्टिट्यूशनल क्या होते हैं उसको मैंने आपको बताया। और इस तरह से अब आइए कुछ ग्रुपों का नाम लिख रहे हैं जो क्लास 11 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए देखिएगा, यहाँ पर हमने दिया है क्लोरो लगाया, ब्रोमो लगाया, आडो लगाया, फ्लोरो लगाया, NH2 अमीनो लगाया, Cl लगाया, साइनो लगाया, NC लगाया, आइसोसाइनो लगाया, COOH लगाया, OH वो लगाया। यहाँ पर देखिएगा CHO लगाया हमने। CHO को हमने कहा कि अलिया एल्डिहाइड है। क्या बोला हमने? अलिया एल्डिहाइड है। अब यहाँ पर देखिएगा अल हो गया CHO। अगला ग्रुप हम लगा रहे हैं COO, इस तरह से एस्टर, ये एस्टर हो गया, एस्टर हमने लगा दिया। तो इस तरह से अब आप देखिए RCO होल टेकन ट्वाइस O, ये एनहाइड्राइड हो गए। क्या हो गए? एनहाइड्राइड। इनको एनहाइड्राइड बोला गया। OSO3H, OSO3H बोला गया। सल्फोनो हो गया, सल्फोनो, नोट करते चलिएगा आप लोग। सल्फोनो समूह हो गए। बेसिकली ये हाई स्कूल के बच्चे क्लास 10th में जो हैं वे पूरी तरह से इस बात को अध्ययन कर लें, जान लें कि कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं और कहाँ पर ऐड किए जाते हैं, किस तरह से ऐड किए जाते हैं और कौन से सैचुरेटेड है, कौन से अनसैचुरेटेड है। माय डियर फ्रेंड, जब इसमें डबल बॉन्ड लग जाएगा तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा और जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा। इस तरह से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के विषय में आपने देखा। तो मैंने सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, उनके विषय मैंने आपको बताया। और इनके नामकरण की पद्धतियां, नॉमेनकल्चर सिस्टम, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब इन्हीं में आइए थोड़ा सा अब हम देखते हैं कि डिग्री कार्बन की पहचान कैसे करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा डिग्री कार्बन की पहचान करना। यहाँ पर लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्री कार्बन। यहाँ पर डिग्री कार्बन है, क्या डिग्री कार्बन का सिग्निफिकेंस, क्या डिग्री कार्बन का सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, इनकी पहचान क्या है सिग्निफिकेंस की। तो यहां पर हमने लगाया सिग्निफिकेंस माने पहचान क्या होती है। अब आइए हम आपको पहचान बताने चल रहे हैं कि किस तरह से हम पहचानते हैं इनको, कि यहाँ पर कौन सा कार्बन है। जैसे मैं कोई कंपाउंड लिख रहा हूं और उस कंपाउंड को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहां पर मैंने लिखा C, ध्यान दीजिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड। फिर हमें देखिएगा ध्यान पूर्वक, यहां पर हमने लिखा है, यहां पर C से अकेले जोड़ा है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर हमने लिखा है CH2, फिर लिखा हमने CH2। ध्यान दीजिएगा दो बार क्या क्या लिखा, CH2। उसके बाद देखिएगा CH लिख करके लिख दिया CH3, फिर यहां लिख दिया CH3। एक कंपाउंड मैंने लिखा। अब अगर हम आपसे कहें आप इसमें यह बताइए 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन कौन सा है, 4 डिग्री कार्बन कौन सा है। तो डिग्री कार्बन की पहचान आप कैसे करेंगे। अब आइए देखते हैं। जिस कार्बन के ऊपर कोई कंपाउंड ना जुड़ा हो 1 डिग्री होता है। यहाँ पर इसके ऊपर कोई कंपाउंड, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं नोट करते चला 1 डिग्री कार्बन हो गए। तो 1 डिग्री हो गया। लेकिन ये कार्बन जो है इससे 4 कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ये 4 डिग्री हो गया। कौन सा हो गया? 4 डिग्री कार्बन हो गया। तो टर्मिनल के कार्बन को हमने 1 डिग्री कहा। टर्मिनल के कार्बन जो लगे हुए थे इनको हमने 1 डिग्री कहा, इसको हमने 4 डिग्री कहा। यहाँ पर देखिएगा 2 डिग्री कार्बन हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये सब 2 डिग्री कार्बन में आए। किस डिग्री कार्बन में आए? 2 डिग्री कार्बन में आए। और यहाँ से 1 2 3 लगा हुआ है, ये 3 डिग्री कार्बन में आया। और ये अकेला 1 डिग्री है, अकेला 1 डिग्री है। तो सारे कार्बन की डिग्री मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप लोग बहुत ध्यान से इसको नोट कर लेंगे कि यहाँ पर कार्बन की डिग्री को कैसे पहचाना जाएगा। जो टर्मिनल के कार्बन है उसको हमने 1 डिग्री कहा। और जहां पर आपने देखा कि यहाँ पर आपने देखा एक कार्बन से 3 कंपाउंड जुड़ गए तो 3 डिग्री हो गया। जहां पर कोई कंपाउंड नहीं, CH2 जुड़ा, 2 ही हाइड्रोजन जुड़े, 2 डिग्री हो गया। 2 हाइड्रोजन जुड़ने वाले 2 डिग्री हो गए। और जहां पर एक भी नहीं जुड़ा है हाइड्रोजन, वो सिर्फ 3 मॉलिक्यूल CH3 से ऐड हुआ है, वो 4 डिग्री हो गया।
और टर्मिनल पर कोई कंपाउंड नहीं जुड़ रहा है, तो ये सब क्या बोले जाएंगे, 1 डिग्री कार्बन बोले जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा, मैंने आपको डिग्री पहचानने का तरीका बता दिया। इसी तरह से अगर इसी कार्बन की डिग्री के आधार को आपने पहचान लिया है, जान लिया है, सीख लिया है, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम एल्कोहलों को जोड़ दें, OH ऑल एल्कोहल, OH हमने जोड़ दिया, जिसको हमने कहा कि ये एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल, ये एल्कोहल है, OH है, OH है। अब हमने OH को जोड़ा, एल्कोहल को जोड़ा। अब जो एल्कोहल को हमने जोड़ दिया, तो इसका अर्थ ये निकला कि जब मैंने एल्कोहलों को जोड़ दिया, तो उसी प्रकार से आप 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल आप पहचान सकते हो। अगर 1 पर पहले पर कार्बन पर लग गया तो 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, 2 डिग्री कार्बन पर OH लग रहा है तो 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, 3 डिग्री कार्बन पर OH लगा 3 डिग्री एल्कोहल हो गया, 4 डिग्री कार्बन पर OH लगा 4 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो एल्कोहलों में 4 डिग्री बहुत ही कम मिलते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, लेकिन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन एल्कोहल में बहुत ही आसानी पूर्वक जो है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल आपको बहुत ही आसानी पूर्वक मिल जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने कई चीजें आज आपको बताया है, और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का मैंने ढेर सारा एग्जांपल भी दिया है, और कुछ एग्जांपल और भी हम देना चाह रहे हैं। तो अब आपको मैं और भी बताना चाहूंगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कंडीशन में आइए देखते हैं कि कुछ ऐसे चेन, तो कुछ ऐसी चेन होती है जिसमें हम इन कंपाउंडों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनकी डिग्री के विषय में बताया। अब आइए देखते हैं कि ये जो कंपाउंड हैं वो किस प्रकार के हैं। माय डियर फ्रेंड, एक ओपन है, एक क्लोज है। क्लोज कब से बनते हैं ध्यान दीजिएगा, ओपन तो आप चार्ज इतनी बड़ी बना दिए। देखिए हमने लिखना शुरू किया CH3, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया N हेप्टेन, N हेप्टेन, यह हो गया N हेप्टेन। अब आपने देखा कि नॉर्मल हेप्टेन हो गया, N हेप्टेन हो गया। ये ओपन है, क्या है, ये ओपन है। रिंग में बनाना हुआ तो कैसे अब हम बना रहे हैं, रिंग में देखिएगा। रिंग हमारी 2 से शुरू होती है, सॉरी 3 से शुरू होती, सॉरी 3 से, रिंग हमारी 3 से शुरू होती है। ये 3 कार्बन की चेन हो गई। इस तरह से आपने देखा, 3 कार्बन की चेन हो गई। यहां पर आपने देखा, इस तरह से आपने देखा H H H H H H। तो आपने क्या देखा, इसको बोला जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन में देख लीजिएगा, इस तरह से 4 कार्बन में देखिएगा आप लोग। यहां से 4 कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है। H H H H H H H, ये हो गया 4 कार्बन वाले। इनको कहा जाएगा आइसो, जो है इसको आइसोप्रोपेन बोला गया। इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटेन, सॉरी साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे, इसको साइक्लोप्रोपेन हमने कहा, इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। अब देखिए साइक्लोपेंटेन कैसे बनता है, इस तरह से। ये चेन जो आपकी बनी, यहां पर इस तरह से आपने देखा, हर कार्बन के जो है, यहाँ पर हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है सभी पर। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसके ऊपर की हाइड्रोजन ना लगा हुआ हो, सभी पर हाइड्रोजन लगेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये साइक्लोपेंटेन हो गया। माय डियर फ्रेंड, इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन भी बनता है। यहाँ पर मैं बना करके आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा। अब यहाँ पर आप कोई कंपाउंड नहीं जोड़ेंगे, रिंग में लिखना हुआ तो आपने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन, ऐसे बस। इसमें अगर बांड लगा दिया तो बेंजीन बन जाएगा। ध्यान दीजिए, बांड आपको नहीं लगाना है। ये इस तरह से आपने देखा, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, इस तरह से आप लोग देखिएगा, इस तरह से आप लोग देखिएगा। यहाँ पर 6 हो गए, 6 के बाद अगले 6 आ रहे हैं, अर्थात हो गया C6H12। कितना हो गया, C6H12। ये C6H12 जो है ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, या साइक्लोबेंजीन कहिए इसको, हेक्सेन नहीं, बेंजीन बोलिए इसको। साइक्लोबेंजीन हो गया, साइक्लोबेंजीन हो गया। आपने देखा कि साइक्लोबेंजीन बन गया, माने साइक्लो का अर्थ हो गया कि रिंग में भी बन रहा है
और अपना कंपाउंड भी बनाया। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी लोगों को आज ओपन चेन, क्लोज चेन, उसके बाद चेन का प्रोपेगेशन कैसे होता है, चेन को शॉर्ट कैसे किया जाता है, एरोमेटिक कैसे बनते हैं, एलिफैटिक कैसे बनते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कंडीशन क्या होती है, ये सारे टॉपिक मैंने अपने चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैंने बनाया। माय डियर फ्रेंड, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करिए। जिन बच्चों के पास ये नहीं पहुंचा उनके पास तक पहुंचे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उसको शेयर करिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।